what you saw here, that world is in a muted growth by just growing 4%, India growing by 6%, and now you are comparing your industry with India. At least your industry should be growing better than India, right? So you try to search some sectors and you try to search that which sectors are growing better than India, right? So here is your work. I hope many people would have practically while doing the work, they would have some problem, right? But problem is the name of the work. We are going to have some problems. It's all right. Okay, Rajesh bhai, can you unmute yourself so that we can understand that which sector you have done and what problem you were facing, what you were able to discover, है ना? बाकी लोगों को भी आवाज आ रही होगी. Yes, Rajesh bhai. जी सर, कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं आई थी मुझे मेरे पास. हाँ, कौन से सेक्टर थे? मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. हाँ जी. राइट, राजेश भाई. एनबीएफसी में थोड़ा सा चैलेंजिंग था. यस कितनी कंपनी है एनबीएफसी में. ओके राजेश भाई, हिंदी इंग्लिश क्या अच्छा रहेगा? सर दोनों ही कंफर्टेबल है मेरे लिए. तो कंफर्टेबल है दोनों. ओके, मेरे ख्याल से वेंकट जी, आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी और ओनली इंग्लिश? नो सर. मीन्स ओनली इंग्लिश. यस सर. और हिंदी चलेगा? नो सर. Right, no problem. Okay, we'll talk in English, right? Okay, thank you. So Rajesh bhai, yeah, we are with you. Yes, please sir. Okay, no problem. Got electronic component sector. So இன்னும் நாளைக்கு அவங்க கொடுப்பாங்க ஃபைல். Yes, Rajesh bhai, you have sector of electronic component, exploration and production. As per your data, electronic components are growing by 34%. Exploration growing by 20%. If these both data are right, then this is good industry, right? Finance is growing by 16%, so it is having a double growth than India. Electric utilities by 14, fiber by 6, and fertilizer by 2. So as per your data, fiber, plastic, and fertilizer are decaying industries. They are actually not growing even like India, right? So we will check what you have done. पहले कौन सा sector first? Which one, Rajesh bhai? Please tell me. Which sector I should go? Okay, let me open your fertilizer sector, Rajesh bhai. Yes. Okay, Rajesh bhai. So you did the work on fertilizer sector. What you were able to discover in this fertilizer sector? Can you highlight your learnings? Yes, please. Yeah, there was a good amount of companies here, and what I came across is that it's not a very good growth at the moment. It's not showing a very good growth. And if you see the companies, like if the 80% of company, 80% of the company, as you mentioned, always that they are responsible for the most of the most of the revenues. So right. I got a 4 companies. If you see the growth, and they were not growing really much because they are under 3.3%, which we say under 4%. And whereas if you see the GDP in the last 4 years, it is around 4%. So it's like a muted growth, and we cannot say that it is doing very well. Correct. Rajesh bhai, as per your data, total market cap is 43,000 crore of fertilizer sector, right? Yes. Now here you have only taken that MSC company, right? For example, you have considered around 13 companies, right? So 13 companies market cap is 43,000 crore. What do you think? You have omitted this. How many companies are there? Is around, I think so, 7 companies. Will it make a huge difference in this market cap? What do you think? No, I don't think so. They will contribute, like I'm not sure, maybe the less than 1%, or if we say like 1 or 2%. So it does not make any sense actually. So we are good to that work.
Let me just cross check it. Anna. First one Yes. your is this Basant GL, right? Let me Yes. cross check that. Does it make any sense to take all these companies? I will go to BSE India. Can you see my screen? Yes, I can see. Okay, here I have written Basant Agro. And what is the market cap? This is not 45,000 crore. It's a This is 45, yeah. 45 crore. 45 crores. And Yes. 45,000 nahi, only It's 45. only 45. Yes. So if I will even include these 7 companies, it will be of no difference. See what turnover he is doing. Let me check it. He is doing 280 crore turnover. So this turnover is nothing, Yes. right? Yeah, So absolutely. that is the reason. You can omit all these companies. It's all right. Just take those Yeah. companies which are listed Yeah. in NSE India, right, sir? Yeah. Yeah. Yes, please. So, are you aware, Rajesh bhai, that there was a time when this fact RCF and one company's name is not here. That was Nagarjun Fertilizer. These all companies were in Nifty 50 once. Are you aware? No, I'm not aware. I'm actually very new These in this were one. India's largest companies, Rajesh bhai. Okay. 2 decades back, they were in top 20, top 50 companies of India. Now you understand why these companies are not today in Nifty 50. In fact, these Yeah. are even not in Nifty 500. ऐसा बुरा हाल Yeah. कैसे हो गया? Why? Because they are not Can you able explain, to Rajesh? generate the because they are not able Yeah, to generate the revenues. definitely, sir. So if they are not able to grow their business, and then also if we will invest in RCF, FACT, Chambal, this Chambal was also in Nifty 50. Just think about it. All these 3 companies were in Yeah. Nifty 50. Today they are nowhere. Why? Because this company were not able to grow. These companies' profits are same as they were in 1995. And that is the reason if I have invested in these or any of these companies, even 25 years back, my value should be same. क्या लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए आने वाले समय में यहाँ पे? What do you think, राजेश भाई? No, you said. But there is a tip, हाँ? What tip चल रहा है चंबल फर्टी का? क्या कहते हो? No, big no. We don't Big work on tip, no, you said. never. That's why Yes, we are getting education from you. correct, sir, correct. You get answer from here that if industry is growing by only 2%, that means you are investing in those sectors which are not growing. Nifty will go to 30,000 in coming 15 years, but still our share will be same, right? Yes, please. So let me congratulate you. You have done a wonderful work. है ना बढ़िया काम किया Thank you. आपने. Thank Very you, sir. very good, राजेश भाई. Thank you. Okay, let me take your another company. This one electrical utilities. Okay, what you discover here, Rajesh bhai? Yeah, here I have seen that the few companies, especially if you, they're the companies who's growing in the last 4 years, they are doing very well, like almost 60%, and one of them is doing 15%, which is really good in a particularly. Okay, Overall is doing well. I mean, we can say. right. So you considered this much companies, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, Yeah, 6 companies, and I think there are so many companies. Okay, 38 yeah, there are a companies. lot. Yes, Right. So out of 38, you took only 6 companies. And if you consider yes, these this 6 companies, then you are getting the growth of 14 percentage. Right? yeah, Here, let me quote one thing that if you remove Adani Trans, just let me remove for a while, yes, then yes. what is your growth? It's only 6%. 7%, 6, 7%. 6%. So Yes, 6, 7% is not extraordinary growth. This is the growth of India. yes, Right? We can't depend on this single small company like Adani Trans.
वजह से आपका एवरेज सुधर Yes. जाता है, तो बराबर है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ Yes, द true, sir. कंपनीज आर नॉट डूइंग सो गुड। अदानी पावर, no growth. Torrent Power, Yes. no growth. NHPC, no Growth. growth. If you had a search, Tata Power was in Nifty. Are you aware about it? No, pure sir. Yeah, just 5 years back, this company Yeah. was in Nifty 50. 10 years back, they were in top 15 companies. Today, Tata Power is not in Nifty 50. Why? Because they are not able to grow. Have you heard the name of Reliance Power? Yes, yes, I heard about R it. Power? He is Yes. here. Yeah, Yeah, they it's were just once down in there. Yes. Nifty 50. Yeah, so see, NTPC, when I have started my investing career, during that time, NTPC was India's second largest company. Which, sir? Second largest company. But today they are not even in top 15. Why this thing happened? Because of this thing. 9% growth, right? Yes. So Rajesh bhai, be clear, all those companies which are not able to grow because of their sector will be decaying slow by slow. In this whole sector, there are only two companies which are growing. One is Adani Trans and one is Power Grid. Right now. Agree. Baki Yes. overall sector, we can say it is average sector. Not good, not bad. Right, sir? Yes, pure sir. Okay. And what about these all companies? This Karma Engineering, SE Power, Energy Development, Yeah, I Wind don't. Power, GVK Power. Nothing. They're out there doing nothing. You know, Rajesh bhai, several people call us कि मेरे पास ये कंपनी पड़ा है, Yes. पीयूष भाई 10 साल से लेके रखा है, how will this company perform? And you will be amazed to see this, that those companies comes in this category. 90% of the people are having this GVK Power. Yes. We can't understand why they are buying this RTN Infra. Many people have invested here. Many people have invested in SE Power. They got some tip on mobile, right? So looking Yes. to these figures, still you have not done the research of quality companies. But yeah, these all companies are not doing business. Why to even see their quality? पहला क्वालिटी धंधे का क्या है? धंधा, Sales. Sales. बिजनेस तो Yes. करो तो बराबर, right, Yes. Rajesh bhai? So average Yes, pure sector. sir. Okay, let me go to this exploration and production. What you will say here, sir? राजेश भाई कैन आई म्यूट यू फॉर सम टाइम? आपकी साइड से थोड़ा Yeah, डिस्टरबेंस आ sure. रहा है, जब भी आपको Okay, बोलना okay. Sure, हो sure. अपने आप को अनम्यूट कर देना। No problem. चिंतन भाई हम क्या करते हैं, हम let me take another candidate so that during that time some if there is some disturbance it would be clear, right? Okay राजेश भाई, मैं कुछ देर बाद वापस आपको लेता हूँ. Okay, let me move towards next. आपका ये वर्क हम लोगों ने देख लिया. Okay, pure sir. There were some error which we have corrected. For example, we corrected error of electronic component, है ना, कि भाई sorry electronic utilities. If we remove only one company, then growth is gaya pura. 90% companies were doing nothing, right? So these are little error which you can correct on your own. All right. So let me again sort it from Z to A and see. Oh, विनोद भाई का नाम अभी आ गया, अभी तक नहीं था. चलो इसको 12 कर देता हूं मैं. Okay. Now let me sort. Okay. So Ashok bhai, let me see Ashok bhai is there right now or not. Okay, Sir. Ashok bhai, if you are online, kindly unmute yourself. सर कैन आई इंटरप्ट? Yes, madam, please. सर मेरा भी अपलोड किया हूँ बट दिख नहीं रहा है. आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. आई जस्ट No मेड problem. two industries and I wanted you to correct it. Okay, madam, आपने शीट में नाम क्या दिया है मैडम? ये 39, मेरा 40, 41 ये सब आपका नहीं है ना? Or you have नहीं written your own name there? Yeah, I have written my name and they are in movies and entertainment and the other one is commercial services. Okay, It comes madam. after
life insurance. It comes after life insurance. Right. Just a minute. Mining and movies and entertainment. Right. Okay, madam. Mala madam, in Sir. this sheet, there is no, your name is not there. See, what would have happened? आपने कोई अलग शीट में काम किया होगा, राइट? आपने अपना करके मैं दूसरा नहीं spreadsheet- करके इसमें कॉपी कर दिया, इसमें पेस्ट कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। एक काम करते हैं मैडम, लिंक में पेस्ट कर दिया था। एक काम करता हूं मैं मैडम, देखिए Sir. ये 39, 40, 41 की स्प्रेडशीट वैसे भी ओपन है। लेट मी राइट डाउन योर नेम। Okay, sir. Okay. I have written your name. And which was first sector which you worked on? Movies. Movies and entertainment. Okay. So I have written Mala madam, movies. Okay. Which is And your oth- second other- one? Yes. Miscellaneous commercial services. Commercial. No problem. हम क्या करते हैं मैडम? Till the time I will talk with Ashok bhai, what you do? Sir. Just open this spreadsheet, both spreadsheet in your computer, right? Go to your spreadsheet, take the data and kindly just paste it here. हम live देख लेते हैं कि क्या problem आ रहा है, बराबर ना? ठीक है, ठीक। Okay? Yes. Till that time, we will talk with Ashok bhai. Okay, Ashok bhai, you can unmute yourself. Yeah, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening, Ashok bhai. You have done a wonderful work, right? Let me clap for you. बढ़िया काम किया आपने। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा लेट हो गया था, दूसरी ट्रेनिंग में बिजी था और मैंने हाँ, ये हाँ, आपका वीडियो लेट देखा, Right. तो थोड़ा इतना आई एम नॉट सेटिस्फाइड फॉर माय वर्क 100%, Okay. Right. बट No problem. देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्या गलती हुआ है या आपसे आप कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहते हो, बराबर की नहीं? मैं थोड़ा देख लेता हूँ। सबसे पहले ब्रिवरेजेस या कौन सा सेक्टर ओपन करूं मैं? ब्रिवरीज और डिस्टिलरी। ओके, चलिए पहला सेक्टर आपका ब्रिवरेजेस एंड डिस्टिलरीज। ओके, अशोक भाई मुझे समझा सकते हो कि आपने जब ये सेक्टर पे काम किया, आपको क्या चीज समझ में आई कि ये सेक्टर में क्या अच्छा है क्या बुरा है? मुझे कुछ समझाओगे आप? सर एक्चुअली मैंने सिर्फ ये आपका वीडियो देख के उसका सिर्फ सेल्स और ये मार्केट कैप से ही ये बनाया है पूरा। उसके लिए सेक्टर में कोई और रीडिंग नहीं किया है। और दूसरा मेरा ये प्रॉब्लम है कि उसमें जो जब मैं सेल्स शीट में जाता हूँ, मतलब रिजल्ट में, तो उसमें वो मिलियन और करोड़ में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कौन से फिगर लो ये। जैसे किसमें कंफ्यूजन होता है? एक रिपीट करो तो, किसमें? वो ऊपर जो दिखता है वो करोड़ में दिखता है फिगर, हाँ, और कंसोलिडेशन में जाते हैं तो उसमें वो मिलियन में आता है। सही बात है, सही बात है। और मार्केट कैपिटलाइज में जाके देखते हैं तो जब बीएससी की साइड पे देखते हैं तो उसमें जो फिगर आते हैं और हमने जो एनएससी की साइड से लिया है, उसमें वो आपने जो प्रेजेंटेशन वीडियो में बताया था वो कॉपी पेस्ट करके, तो वो कुछ मेरी समझ में नहीं आया कि आपने वो पहले 4 फिगर लिए बाकी के पीछे फिगर छोड़ दिए, तो वो कुछ मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे किया आपने। कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहला मैं आपका क्वेरी रिमूव कर दूं कि जो पीएससी की साइट पे फाइनेंशियल रिजल्ट में जब हम जाते हैं, these are result of Basant Agro, right? Yeah. Here these results are given in crore, so it's clear that this is 286 crore, right? पर कभी भी पीएससी की साइट पे whenever you will enter inside of this data, जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ स्टैंड अलोन पे, अंदर जाके जो भी डेटा आएगा, दिस डेटा विल बी कमिंग इन मिलियन। दिख रहा है आपको? ये मिलियन में, तो ये मिलियन में 2859 है। आपको क्या करना पड़ेगा अशोक भाई? यू विल हैव टू इंक्रीज 1 डेसिमल, 281 में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन, राइट? तो 2859 मिलियन को मुझे करोड़ में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 286 करोड़, राइट सर? So just write down 286. Your
मैटर विल बी क्लियर। अब ये कंफ्यूजन क्यों है वो भी मैं आपको बता दूं कि क्यों बीएससी इतना हमसे ज्यादा मेहनत करवाता है, राइट। हाँ हाँ तो हम लोग इंडिया में कौन सी फिगर देखते हैं, मिलियन की करोड़? करोड़। करोड़ देखते हैं। तो ये मिलियन में क्यों दे रहे हैं? वही इनको तो। पता है हम लोग अंदर जाके देखने वाले नहीं है। अंदर जाके कौन देखता है? हाँ, ये एफआईआई लोगों के लिए रखा हुआ है। अच्छा वो तो मिलियन और बिलियन की भाषा समझ में आती है उनको, तो दे डोंट नो व्हाट इज करोड़, है ना, दे डोंट नो। तो ओके सिंपल ओके। है, अच्छी कोई भी कंपनी ले लो, वहां पे एफआईआई का ही निवेश है, तो एफआईआई को ध्यान में रखना पड़ता है। दैट इज द रीजन दे आर गिविंग ऑल द डेटा ऑफ इनसाइडर इन मिलियन। तो हमें इतना अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा, राइट। कभी भी अंदर जाते हो अच्छा वो उसको, यस बोलो बोलो, वो डेसिमल के बाद क्या वो फिगर राउंड में ले लेना क्या सर? यस राउंड में ले लेने का। देखो मैंने क्या किया, 2859 है हाँ तो मैंने 286 करोड़ ले हाँ, लिया तो उसको क्योंकि 9 है। भाई थोड़ा जूम कर अच्छा, दीजिए ना, ये फाइव से अंदर के नीचे डेटा होगा तो थोड़े फाइव। थोड़े छोटे दिख रहे हैं। ओके, 2859 दूसरा है, दूसरा इसको सर कभी 286 कुछ हाँ वो तो राइट। समझ आया। लेकिन सर हाँ कभी कभी क्या है कि वो रिजल्ट में जब देखता हूँ यहाँ पे नेट सेल्स भी आता है, फिर कुछ दो चीज आती है। रेवेन्यू बराबर में सेल्स दो बार लिखा हो, दोनों फिगर अलग अलग आते बराबर, हैं, तो कौन से कोई फिगर को बात कंसीडर करना है वो प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। देखो अभी हम लोग ये चीज समझे ही नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। अभी मैंने ही नहीं समझाया है क्योंकि हम लोग हाँ अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज सीखेंगे। पर अभी के लिए ये ध्यान में रखो। देखो मैं वापस से ये ओपन करता हूं, हाँ, एक मिनट। ओके ओके, ये मैं एनुअल में गया, स्टैंड अलोन पे क्लिक किया, नेट सेल्स लिखा हुआ है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या ओके मतलब है? योर बिजनेस। तो ये नेट सेल्स वाली फिगर ले लो आप, बराबर है। ओके ओके बाकी देखो शब्द कुछ भी इस्तेमाल करो, रेवेन्यू लो, नेट सेल्स लो, सब चीज तो एक ही बनती है, बराबर ना। फिर भी ओके हम इस पे और ओके बाकी चर्चा आगे करेंगे। ओके ओके, तो मिलियन करोड़ हाँ आपका क्लियर हो गया है। अब मैं आता हूं मार्केट कैप पे। जी मार्केट कैप अशोक भाई सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि बीएससी पे अलग है, एनएससी पे अलग है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है क्यों होगा बताओ मुझे, क्यों एनएससी और बीएससी में थोड़ा डिफरेंस होगा? जैसे यूबीएल है, लेट मी चेक यूबीएल, हाँ इट इज यूनाइटेड बेवरेजेस। ओके, so यूनाइटेड बेवरेजेस का मार्केट कैप इज 25.5 थाउजेंड करोड़ है ना, 25523। इधर अभी सर कितना है? इस हाँ 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 बोलो बोलो। 20 हाँ तो पीछे का जो फिगर है वहां से तो आप कैसे उसमें ऐड करेंगे? जैसे कि जो मतलब जो जो मतलब जो एनएससी की साइड में नहीं है जो फिगर, हमने यह हाँ ऑटो में से लिया है, ठीक है। अभी राइट। देखो कि ये जो कंपनी का मुझे डालना है मार्केट कैप बीएससी की साइड से, हाँ हाँ राइट। तो इससे वो थाउजेंड में है ना, तो इसको अंदर हाँ, कैसे ऐड करना है वो थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो आपको क्या है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, बराबर ओके है। इसकी कोई थियरी हाँ नहीं है कि कोई जगह लिखा नहीं है इसमें, बट हाँ हाँ सिर्फ थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जैसे यूबीएल में आपको पता चल गया कि हाँ हाँ 25303, ये सब जो फिगर है ये हाँ एक्चुअली 25,000 करोड़ है, बराबर है, ओके हाँ हाँ राइट। अब हाँ आप यहाँ पे आ गए, हाँ यूनाइटेड ब्रेवरेज इसके ये डेटा में 25523। आपको ओके हमेशा बीएससी से पता चल जाएगा कि डेटा हाँ ये कितना करोड़ है। आपको यहां से हो सकता है इतनी सारी फिगर देख के पता ना चले कि ये रियल में हाँ क्या हाँ फिगर है। जैसे रेडी को या लिखा है तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि ये रेडी को हाँ हाँ 5,000 करोड़ है, बराबर है। हाँ हाँ पर मुझे हाँ कहां हाँ से पता चलेगा? देखो बीएससी में से देख के पता चल जाता है कि ये कितना है, 25,523,000 करोड़, मतलब 25,000 करोड़ है। वो तो क्लियर है। ओके ओके मुझे नहीं हाँ लगता है बीएससी में देख के कंफ्यूजन होना चाहिए, ओके सर। अशोक भाई।
मतलब 1000 करोड़, 25,523 करोड़ है। हाँ, ये 25,523 करोड़ है, बराबर। ओके ओके। यहाँ देख के आपको नहीं पता चलेगा, मैं खुद पागल हो जाऊंगा, इतने सारे जीरो है यहाँ पे तो। तो फिर बराबर ना। हाँ, उसको अब राउंड इसको कैसे करें सर? इसको राउंड देखो करने का जरूर नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो ना। ओके। क्या कहाँ पे प्रॉब्लम अच्छा, नहीं आएगी वो मैं समझ रहा हूँ आप, नहीं, वो हाँ मैं आपको यहाँ बता भी जो देता जो हूँ जो कि आप, कंपनी का नहीं है। हाँ देखो पहली हाँ, चीज अशोक भाई, जो कंपनी नहीं है उसको डालने का जरूर नहीं है, क्योंकि 90% ठीक है। चांसेस होंगे कि जो बड़ी कंपनियां हैं, ऑल दोस कंपनीज वुड बी लिस्टेड इन एनएससी। अब मेरे को बताओ, जी व्हाई सम कंपनीज आर नॉट लिस्टेड इन एनएससी? जी सर। अगर जैसे ये खोडियार है, ये जगजीत है, ये क्यों एनएससी में लिस्टेड नहीं है? इसका सर कुछ दो चीजें, रूल्स। हाँ नहीं, दो चीजें अशोक भाई। पहली चीज की इनको एनएससी में फीस भरनी पड़ती है, हाँ जी सर। बराबर है। स्टॉक एक्सचेंज को एक इनको टोकन देना पड़ता है, एनुअल इनकी फीस होती है। अब यार तुम जी अगर सर। वो फीस भी नहीं देना चाहोगे और आशा हाँ रखते हाँ हो कि हम लोग इन्वेस्ट करें, तो हम क्यों इन्वेस्ट करें? जी बिल्कुल। जब नहीं नहीं इंडिया के करना है। दो बड़े एक्सचेंज है, वी विल हम्म। एक्सपेक्ट दैट यू विल लिस्टेड ऑन बोथ द एक्सचेंज। वो जो फिगर आता है साइड से, उसको इस फिगर से मैच करने के लिए पाछड़ जीरो लगाना पड़ेगा कि नहीं, बस यही जानना हाँ, है मैं मुझे। वो समझा देता हूँ, अभी आपको समझा देता हूँ। पहले मैं आपका अच्छा यूनाइटेड स्पिरिट डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये गलत है, अच्छा। राइट। ये मार्केट कैप जो आपने लिखा हो गलत है, लेट मी डिलीट इट। हाँ, और वो गलती क्यों हुई है वो भी मेरे को पता है, कोई बात नहीं। आपसे ओके। गलती इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे क्या था, आपका ये आता नहीं था, आपने सेम फॉर्मूला डाला, आया नहीं आता हाँ है, हाँ, क्यों नहीं आता है? क्यों एनएससी नहीं आ से, रहा है? एनएससी में नहीं देखो, था। एनएससी यूनाइटेड स्पिरिट के नाम से नहीं जानता है, एनएससी ओके में इसका हाँ, वो नाम है मैकडोवेल, मैकडोनाल्ड, हाँ हाँ हाँ। है ना, राइट। यस सो यस। आई विल रिक्वेस्ट और एवरीबडी, आप सारे लोग जितने हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार देख लेने का कि कोई बड़ी कंपनी तो नहीं है कि जिसकी जी फिगर नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही होगी तो कुछ एरर भी हो सकता है, जो एरर अशोक भाई के केस में है, यूनाइटेड स्पिरिट इज नॉट नोन। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, एनएससी इंडिया का मैंने वेबसाइट ओपन किया, राइट, और मैं यहाँ पे लिखता हूं यूनाइटेड स्पिरिट, ये आ गया यूनाइटेड स्पिरिट। और इसका सिंबल क्या है यहाँ पे जी दिख रहा जी। है आपको अशोक भाई? मैकडोनाल्ड। मैकडोवेल एंड, तो ये आपकी स्प्रेडशीट को क्या पता है, उसको नहीं पता ये यूनाइटेड बेवरेजेस है। उसको क्या पता है, जी जी ये जी। वाला सिंबल पता है, मैकडोनाल्ड। यूबीएल, राइट। या तो या। आप अगर यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट पे हाँ सर्च करोगे तो नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इधर क्या लिखना पड़ेगा पता है, मैकडोवेल एंड। मैकडोनाल्ड। कभी कभी ये एरर आएगी और आपके सेक्टर में है ये एरर, राइट। मैं आपको जी दूसरा सर। एक रास्ता बताता हूँ, एकदम आसान रास्ता, ये थोड़ा लंबा रास्ता था। हाँ सीधे सीधा गूगल में जी लिखो सर। एनएससी हाँ हाँ यूनाइटेड स्पिरिट, लिख दिया। आपने हाँ गूगल हाँ। को क्या बोला पता है? आपने बोला कि मुझे एनएससी में यूनाइटेड स्पिरिट चाहिए, तो गूगल ने आपको ओके। यूनाइटेड स्पिरिट दिया, पर एनएससी के सामने ये क्या लिखा है, मैकडोवेल एंड। मैकडोनाल्ड। तो ये सिंबल कॉपी कर लो और इधर डाल दो। ओके, ओके डाल दिया मैंने इधर सिंबल, भाई जी। जी सर। राइट। अभी मैं क्या करता हूं, आपका फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करता हूं। चलो कौन सा है, जी। अरे क्या हुआ, आ गया या सर। बराबर की नहीं? तो देखो कभी कभी आपकी जी जी सर। 500 में से एक आधी कंपनी में ऐसा प्रॉब्लम होता है, जो आपके नसीब में आया तो अच्छा है, आपकी जी वजह सर। से सबको सीखने को मिला, बराबर ना। तो अब जी क्या सर। करना पड़ेगा, इधर जी सर। मैं आपका, इसको फिल्टर करना पड़ेगा फिर से। आपकी या आपकी पूरी स्प्रेडशीट देखे तो आपकी स्प्रेडशीट देख के मुझे एक चीज समझ में आती है, मैकडोवेल और यूबीएल, खाली ये दो कंपनी को देखो सबसे तो इनका मार्केट कैप कितना है, 56 और 34 करोड़। तो टोटल कितना हुआ, देखो इधर दिखेगा नीचे 90%, 90 है ना। 90। तो इतना क्लियर हो गया अशोक भाई, जी दारू सर। की जी सर। कंपनी में
90% हाँ। मार्केट कैप मैकडोवेल और यूबीएल का है। जी सर, यानी ये दो कंपनी आई है जो सही में तगड़ा धंधा करती है, जी बराबर। सर, जी सर। अब आप ये दो कंपनी का ग्रोथ देखो, मैं अभी ये सब डिलीट कर देता हूं, हम्म। राइट। दोनों का ग्रोथ देख के इतना तो पता चल रहा है जी। अप्रोक्सीमेटली कितना ग्रोथ है, 30% तो होगा ही, 60 राइट। 32 Both the 31 company जैसा। have grown by 30%, तो इसका एवरेज कितना आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 30 आना चाहिए, बराबर है। 31। या यस कर दूं मैं एवरेज, चलो कर देता हूं मैं इधर एवरेज आप। हाँ जी। ओके, वो सर, तो वो देखो रेट की वजह से सब 32% कुछ का नहीं हो growth। सका। किसकी वजह से? ये दो कंपनी की वजह से। हाँ, देखो क्या है पता हुआ, मैं आपको आपको कभी कभी ये लगेगा पीयूष भाई हम रेडी को नहीं ले रहे, मेरी फेवरेट कंपनी है। पीयूष भाई आपने जीएम नहीं लिया, जी। मेरी फेवरेट कंपनी है। पर भाई इनका कोई कंट्रीब्यूशन धंधे में नहीं है। धंधे में कंट्रीब्यूशन जी ये सर। दो को मिलाओ तो हम बोल सकते हैं आधा दारू इंडिया में ये दो कंपनी बेचती है। अगर ये जी दो सर। कंपनी का धंधा बढ़ रहा है, समझ जाओ हम्म। दारू की कंपनियों का धंधा बढ़ रहा है, और इनका जी धंधा सर। घट रहा है, समझ जाओ दारू का धंधा घट रहा है। क्यों मेहनत करके सबका रिसर्च करने का, बराबर ओके सर। सर। जी सर। लेट मी क्लियर वन बिग थिंग हियर कि हम क्वालिटी कंपनी नहीं ढूंढ रहे। मेरे को ये मत बोलना कि पीयूष भाई मुझे मिल गई मैकडोवेल का सबसे बढ़िया कंपनी है, कल ही शुक्रवार के दिन मैं ट्रेड डाल दूंगा मैकडोवेल का, मत करना ऐसा। जी हमने सर। ये नहीं बताया ये अच्छी कंपनी है, अभी तो हमने ये देखा है कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां कौन है। जरूरी नहीं है जो बड़ा है वो अच्छा है, राइट। जी सर। ये क्वालिटी एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ मार्केट कैपिटल के हिसाब से नहीं देखने का है। हाँ, खाली मार्केट कैप से आपको अंदाजा आएगा। देखो आपने जी सर। मान लो ये सेल्स की फिगर नहीं डाली होती, बराबर ओके। अशोक भाई, हाँ जी। तो देखो हाँ जी मार्केट कैप सर। से भी आपको इतना तो पता चल गया कि ये दो कंपनी का धंधा सबसे ज्यादा है, जी बिल्कुल। राइट। मैकडोवेल का धंधा 30,000 करोड़, यूबीएल का धंधा हम्म। कितना, 30 और 15 45,000 करोड़। ये सब कंपनी को मिलाओ तो कितना धंधा करती है, देखा है आपने। चलो मैं यहाँ नीचे टोटल कर देता हूं आपका, सॉरी मैंने एवरेज लिया, लेट मी टेक टोटल हियर। देखो 60,000 करोड़ में से 45,000 करोड़ तो आपकी ये दो कंपनियां धंधा करती है ना। बाकी क्या 15,000 करोड़ में सब मेजर कंपनी। या मतलब एक तरफ राजा बाकी तरफ प्रजा, सब धंधा ये दोनों ही कर रहे दारू में, राइट जी सर। अशोक भाई। तो जी, जी, ग्रोथ सर। का अंदाजा लगाने के लिए आप दो कंपनी को पकड़ोगे, ग्रोथ पता चल जाएगा, जी बिल्कुल। राइट। यहाँ पे एक आप whenever ध्यान से सुनना इस बात को, आप लोग जब भी ब्रिवरेजेस का सेक्टर का स्टडी करते हो या सिगरेट इंडस्ट्री लेते हो, कौन सी दो सेक्टर बताया मैंने, ब्रिवरेजेस Beverages और और cigarette। सिगरेट। खाली ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिसपे एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा लगती है, जी बिल्कुल। एक्साइज ड्यूटी, राइट। तो एक्स्ट्रा लगता एक्स्ट्रा लगती है क्योंकि ये सेक्टर कौन से हुए जो जिसको हम मानते हैं कि भाई हेल्थ के लिए नुकसानकारक है, तो ये लोग बोल भी नहीं सकते कि नहीं हम एक्साइज ड्यूटी नहीं भरेंगे, राइट। तो लेट मी शो यू बिल्कुल। अशोक भाई, आपको थोड़ी यार मेहनत इसमें ज्यादा करनी पड़ेगी, राइट, पर वो करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। मैंने यूपीएल ओपन किया, यूनाइटेड बेवरेजेस, ओके। 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 एक चीज के लिए क्लियर रहो आप कि आपने जो लिखा है ना कि पहले 5,000 करोड़ यूबीएल धंधा करती थी, आज कितना जी। कर रही है यूबीएल, 15,000 करोड़ 14,000 कर रही है, 15,000 करोड़। तो पब्लिक ने ओके। यूबीएल को 5,000 के बदले 15,000 करोड़ दिया, राइट। पर ये 15,000 करोड़ पूरा यूबीएल के पास नहीं गया, क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। आपको इधर दिखेगा, सॉरी स्टैंड अलोन करना था ना, गलती हो गया। हाँ। स्टैंड अलोन, ओके। नेट सेल्स आपने लिखा है
14,000 15,000 करोड़, बराबर है। इसमें जी आपको सर। एक्सेस जी ड्यूटी सर। दिख रही है कितनी है? 81,000। या मतलब करोड़ में कन्वर्ट करो तो 8,000 करोड़ हुआ, 8100 करोड़, है ना? 8100। ठीक। तो इतना ध्यान रखो कि पहले 5,000 करोड़ आता था, उसमें मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम पोर्शन यूबीएल के पास जाता था, और सरकार ने 4 साल पहले एक्साइज ड्यूटी जबरदस्त बढ़ा दी। तो अब 14,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ किधर जाता है? एक्साइज में। एक्साइज में जा रहा है। तो एक्चुअल यूबीएल के पास कितना आया? 6,500-7,000 करोड़, है कि नहीं? 13.5 करोड़। हाँ बराबर, 6,500-7,000, क्योंकि हमने एक्साइज ड्यूटी निकाल दिया, जी राइट? सर। इतना है। हम ये कह सकते हैं कि धंधा तो बड़ा ही है, लोगों ने पैसा फेंका है, राइट? कंपनियों को इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बराबर? ये समझ गए आप अशोक भाई? हाँ हाँ जी सर। अब ये प्रॉब्लम तो हर सर- सेक्टर में नहीं आएगा, ये एक्साइज सब वाली सब है चीज सर। आईटीसी में। ये माइनस करना पड़ेगा सब में सर। नहीं नहीं, अभी तो आप रखो इसको, देखो पब्लिक अच्छा, ने ओके। तो दिया कि नहीं पैसा, ओके हाँ है ना? अभी जी हम जी। इसको रखते हैं, पर ये आप ध्यान रखना कि ये पैसा इनके पास नहीं गया है, ये पैसा ठीक है। सरकार के पास गया है, बराबर है? ओके सर। ज्यादातर ओके। पैसा, ओके। जब सोचो 15,000 करोड़ में से 8,000 करोड़, यानी बहुत एक्साइज ड्यूटी सरकार ले रही है, राइट? अशोक भाई, एक चीज क्लियर है कि सेक्टर बढ़ रहा है, धंधा जी सर। ये सेक्टर का अच्छा बढ़ रहा है। यस सर। 30%, मतलब ये इंडिया से आउट परफॉर्म कर रही है सेक्टर। सेक्टर बिल्कुल। ऐसा क्यों है कि लोग इतना पैसा दारू की कंपनियों में डाल रहे हैं? मैंने तो कोई कंपनी देखी नहीं जो फ्रूट जूस बेच रही है और इतना धंधा कर रही है। लस्सी की कोई कंपनी इतनी बड़ी नहीं हुई है, क्यों ये कंपनियां इतनी बड़ी हो गई? बताओ। नहीं सर। हाँ, नहीं समझ में आया था। नहीं समझ में आया? रिपीट करता हूँ, कोई फ्रूट जूस की कंपनी इतनी बड़ी नहीं है इंडिया में, है क्या? नहीं नहीं। देखो, इंडिया में नहीं, दुनिया भर में ऐसी जितनी भी इमर्जिंग कंट्री है, इमर्जिंग मतलब जो बढ़ रही है। हम नहीं बोलते, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मेरे चाचा तो फॉरेन से आए हैं, उनके पास तो लाइसेंस है, मतलब वो जी, तो जी। वहां पे उनका तो डेली लेते हैं, बराबर कि नहीं? जी पर सर। इंडिया में अभी हमारा ऐसा नहीं है। जी सर। वो भी कंट्रीज डेवलप्ड है, मतलब उनके पास डिस्क्रिशनरी पैसा है, खर्चा जी। करने के बाद पैसा बचता है, तो वो लोग ब्रेवरेज इसमें पैसा डालते हैं, वो लोग इसमें या ब्रेवरेज इसमें पैसा डालते हैं। जैसे चाइना है, तो चाइना में भी लोगों के पास पैसा नहीं था इंडिया की तरह, वहां पे भी ओके। लोग कम दारू पीते थे। पर जैसे पिछले 10 साल में चाइना जबरदस्त ग्रोथ हुआ, तो वहां की जो लोअर मिडिल क्लास गिनो, मिडिल क्लास गिनो, जिनके पास कम पैसे हुआ करते थे, जैसे उनके पास डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ी, लोगों ने ये सेक्टर में पैसा डालना चालू किया, राइट? तो इंडिया में भी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले समय में इंडिया का मिडिल क्लास बहुत अच्छा कमाने वाला है। आज जो लोग 1.5 लाख 2 लाख कमा रहे हैं, ये लोग 5-5 लाख रुपया कमाएंगे आने वाले 10 साल में। तो भारत में भी दारू की कंपनियों का ग्रोथ बहुत बढ़िया होगा, जी सर। राइट? चाइना की एक दारू की कंपनी है, वो उनकी निफ्टी 50 में भी आ गई। निफ्टी 50 छोड़ो, टॉप 10 कंपनी में है। इंडिया में अभी ऐसा नहीं है, कोई कंपनी निफ्टी में नहीं। आप देखोगे आने वाले समय में कंपनी निफ्टी 50 में आएगी। कब आएगी? जैसे इंडिया की धीमे धीमे इनकम बढ़े, बराबर? ओके सर। तो मैं आपका यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ। दिस इज अ सेक्टर ऑफ टुमारो, वी शुड इन्वेस्ट हियर, नो डाउट अबाउट इट, राइट? ओके। मैं अशोक भाई, आपके अलावा अभी किसी और को चांस देना चाहूंगा, उनसे हम बात करेंगे ताकि थोड़ा उनके भी प्रॉब्लम हमें समझ में आए। या बोलो 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 अशोक भाई। ओके सर। और एक सर, बैंक का भी देख लेना, बैंक में थोड़ा प्रॉब्लम था मेरा, राइट, उसमें वो रेवेन्यू नहीं आती है, तो हाँ, ओके, उसमें थोड़ा अच्छा। अगर बैंक में बाद मैं में आपको देखोगे एक रिक्वेस्ट तो करूंगा अशोक भाई, चलो देख ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि बैंक मेरे को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मिस कर दे। ओके, ये बैंक है, जी सर। आप क्या कहते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है?
उसमें रेवेन्यू नहीं होती है, तो इसमें टोटल इनकम कौन सी कंसोलिडेशन रिजल्ट में कौन सी चीज यहाँ पे लेनी चाहिए मेरे को? जनरली मैं ये India- कहता हूँ इसमें कि क्या होता है? रेवेन्यू अदर इनकम फ्रॉम, हाँ अशोक भाई, जनरली हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना चाहिए। फर्स्ट वन होता है वही। ऑपरेशनल इनकम कितनी हुई, पर आपको बैंक में वो नहीं मिलेगी। हाँ वही वही वही। हाँ बैंक में आप क्या करो, जो आपने ली है वो परफेक्ट फिगर है, यही फिगर लो, टोटल इनकम, राइट? ओके सर। परफेक्ट परफेक्ट लिया है आपने। अब बैंक में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जब जी सर। नेक्स्ट क्वेरी सेशन में बात करें, तब तक यहाँ पे थोड़ा और आप इसको और डीपली जाओ। देखो HDFC, कोटक, ICICI, एक्सिस, ये सब बड़ी बैंक है। जी सर। अब बंधन बैंक को आपको क्या लगता है, आप इनसे कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बंधन बैंक इज अ रीजनल बैंक। हाँ, और एक बात, इसमें 2 साल का इसी रिजल्ट था, क्योंकि वो लिस्टेड लेट हुई है, तो ये मैंने लिखा है, तो ये 2 साल का ही बराबर मैंने है। लिया है। कोई बात नहीं, देखो बंधन बैंक का 2 साल का लिया है, मैं आपको कह सकता हूं कि आपको एनुअल रिपोर्ट में जाके 5 साल का लेना चाहिए, पर नहीं मिलेगा, क्योंकि बंधन बैंक पैदा ही नहीं हुई थी। हाँ बस ये बस, तो फिर RBI ने लाइसेंस ही अभी दिए है, हाँ, बराबर है? तो सर इसमें ऐसी चीज तो में आपने क्या परफेक्ट करना लिया है, लेकिन 50% ग्रोथ क्यों? ऐसा इतना सब ग्रोथ हो सकता है क्या? ये नहीं हो AU सकता बैंक है। 52% ग्रोथ, क्यों इतना हाई ग्रोथ है यहाँ पे? वो सर अशोक 2 भाई, साल के वाह। फिगर, 2 साल के फिगर है इसलिए सर। नहीं, ऐसा नहीं है, तो 2 साल के बैंक ऑफ बड़ौदा के फिगर ले लो, -15% आएगा। तो सर ये मुझे कंफ्यूजन था, नहीं, इसीलिए मैंने ये बात नोटिफाई भी लिखा है कि ये 2 साल का है। बराबर है। आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अशोक भाई। बैंकिंग इंडस्ट्री बटी हुई है 3 चीजों में। एक है, ओके। सबसे बड़ी अब तक की थी गवर्नमेंट बैंक, जी बैंक। सर। तो आपको क्या ओके। करना पड़ेगा, इसमें जो गवर्नमेंट बैंक है उसका एक अलग लिस्ट हाँ, बनाओ, राइट? जैसे यहाँ ओके। पे सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैंक आपकी कौन सी है? बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, SBI क्यों नहीं बैंक है? ऑफ बड़ौदा SBI किधर चली गई? इसमें सर लिस्ट में आई नहीं SBI सर। खो गई। हाँ, पर SBI का सर, नामो निशान नहीं है, कहीं कुछ डिलीट हो गया लगता है आपसे, बराबर? हाँ जी सर, फिर से देख कोई लेता हूँ मैं। कोई चिंता की बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या करने का, देखो खाली मैं इतना करता हूं, SBIN, और ये आपका मार्केट कैप, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V आ गया। आ हाँ गया ना? अब बाकी की चीजें आप डिटेल लिख देना यहाँ पे, बराबर है? जी सर, बिल्कुल। अब क्या करो अशोक भाई, आप गवर्नमेंट बैंक का अलग लिस्ट बनाओ, ओके सर। प्राइवेट बैंक का प्राइवेट अलग बैंक लिस्ट का बनाओ। ओके। यस, क्योंकि हाई क्लियर है कि जो गवर्नमेंट बैंक है उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। जैसे IDBI, ये अब तक जी गवर्नमेंट सर। बैंक, तो -5%। बैंक ऑफ मतलब जो बड़ौदा, इंडेक्स में जो दिया है इस तरह, एक PSU और एक प्राइवेट का। यस, एक PSU, एक प्राइवेट, लेकिन एक तीसरा ओके नया सेक्टर आपको बनाना पड़ेगा अशोक भाई, और वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। यस यस, AU और स्मॉल इसी फाइनेंस तरह। बैंक अलग जगह पे धंधा कर रही है, जहां पे ये प्राइवेट बैंक नहीं जाएगी। जी बिल्कुल। रूरल में काम कर रही है, जहां पे इंडिया में अकाउंट ही नहीं है, राइट? सर तो वो आप मुझे कैसे पता 50, चलेगी? हाँ, ये स्मॉल वो मैं बैंक आपको फाइनेंस बता से देता हूँ। आप इनका जब रिजल्ट देखोगे ना, AU बैंक जी सर। खोलोगे तो उनके रिजल्ट में लिखा होगा कि वी आर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके सर। दूसरा तरीका है, गूगल पे जाओ, RBI की साइट पे जाओ, पूरा लिस्ट दिया हुआ है रिजर्व ओके बैंक ऑफ इंडिया में कि कितनी गवर्नमेंट बैंक है, कितनी प्राइवेट है और कितनी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बराबर है? ओके सर। ओके। कैन यू डू दिस थिंग? कर सकते हो कि मुश्किल पड़ेगा अशोक भाई? ये नहीं कर सकता, करूंगा सर, कर दूंगा। है ना? देखो, जितनी ज्यादा मेहनत उतनी मजा आएगी, नहीं उतना और ज्यादा नहीं, रिसर्च बिल्कुल मिलेगा आपको, बराबर है? जी बिल्कुल सर, इतना कर जितनी देना आप, क्वेरी हाँ, होगी इसमें। नहीं बिल्कुल सर, अगले अगले सेशन से पहले ये सब हो जाएगा सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोगों को मैं गुजारिश करूंगा, अशोक भाई के लिए ताली बजानी चाहिए, एकदम बढ़िया तालियां। नहीं, सर ये मैं इतनी मेहनत नहीं की है, यहाँ मैं एक दूसरे क्लास में बिजी था, इसलिए सर सॉरी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई सर ये बात नहीं, बैंकिंग बराबर में है? ही एक क्वेश्चन था सर। यस, पूछिए मैडम, सर पूछिए।
regarding banking only, you were telling that from RBI side we can get the private public sector and then small finance bank also, but we don't get the security codes and other details, I think there. Which detail, madam? Only security code we don't get, that IN number of the bank. Yes, yes, yes. Okay. See, what we can do, madam? Oh, See, you already have name. आपको नाम तो पता ही है इधर, right? You have to हाँ. just create a matching figure. Individual. प्राइवेट के सामने प्राइवेट का P लिख दो, PR लिख दो प्राइवेट, वो तो आपको RBI से मिल जाएगा, है ना? और गवर्नमेंट के सामने G लिख दो। मैंने खुद ने यही किया हुआ है। नहीं, मला मैडम। फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम है ना सिक्योरिटी कोड, हाँ, वो नहीं मिलेगा right. ना शायद। हाँ, वो नहीं मिलेगा, उसका कोई काम नहीं है मैडम। ये कॉलम में डिलीट ही कर देने वाला हूँ ऐसे भी। ओके, इसका कोई काम नहीं लगेगा आपको भविष्य में भी। मैंने सोचा मैं भी एक काम करूँ, बैंकिंग के बारे में मैं भी काम करूँ, सोच रही थी इसके लिए। यहाँ करो ना मैडम, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, देखो, मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अभी ये नहीं पता है कि आप में से किसके पास फर्नीचर एंड फर्निशिंग सेक्टर है। आप में से किसके पास है फर्नीचर सेक्टर? अगर आप ऑनलाइन हो तो मुझे बता सकते हो, देखने दो मेरे को। Who have got this Thank you, furniture sir. and furnishing? किसके पास है? ABCDEF। ओके, प्रदीप भाई के पास है, भाई ऑनलाइन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहता हूं, और वो लॉजिक ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। जब मैं 10 साल पहले निवेश करता था, राइट, तब ऐसा नहीं था कि इतने सारे सेक्टर नहीं थे। अभी कितने सारे सेक्टर हो गए, राइट। मेरे टाइम पे क्या था पता है आपको? एशियन पेंट एफएमसीजी में मानी जाती थी, पर्सनल एफएमसीजी में। अब एफएमसीजी में एशियन पेंट तो एक्चुअली किस में आती है? फर्नीचर फर्निशिंग पेंट में आती है। अब जैसे जनरल इंश्योरेंस नया सेक्टर आया, वो पहले किस में था? फाइनेंस में गिना जाता था। तो आज नहीं तो कल कुछ जगह पे नए सेक्टर बनेंगे, राइट। तो जो भी व्यक्ति फर्नीचर फर्निशिंग में काम कर रहा है, मैं आपको बता दूं, ये सेक्टर में सेरामिक की भी कंपनियां आती है, पेंट की भी कंपनियां आती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों को अलग अलग कर लो। पेंट को अलग नजरिए से देखो, सेरामिक को अलग नजरिए से देखो, राइट, जैसा आपने बैंक में किया, राइट। इसी सर, प्रकार वो से आरबीआई की साइड से कैसे? यस, बताइए क्या कह रहे थे आप? यस प्लीज सर, आरबीआई की साइड से वो लिस्ट मिलेगा? कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? हम गूगल मिल पे जाएगा। जाके? आरबीआई की साइट पे नहीं, थोड़ा मतलब सर्च आरबीआई के करिएगा। अंदर जाना? आरबीआई की साइट पे अंदर जाना पड़ेगा। मैं ऐसा हो तो लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, बराबर है? ये ठीक, ओके सर, थैंक यू। ये क्या? बीएससी एनएससी इंडेक्स में भी मिलेगा ना सर? पीएसयू वहां पे इंडेक्स भी एंड मिलेगा, एकदम सिंपल। प्राइवेट बैंकिंग। देखो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आया, देखो बीएससी इंडिया की साइट पे आया, देख लेना ध्यान से। मैंने मार्केट को क्लिक किया, मार्केट में ये इंडाइसिस दिख रहा है आप लोगों को? इंडाइसिस, जी सर। इंडाइसिस क्लिक हाँ, किया। हाँ। अब इंडाइसिस क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे सारे सेक्टर दिए हुए हैं, बैंकिंग। राइट। ओके। इसमें आपको गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, देखो ये तो लार्ज कैप स्मॉल कैप है, हमें इसका कुछ काम नहीं, हमें सेक्टर और इंडस्ट्री। पीएसयू बैंक, या पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। यस यस यस, राइट। थोड़ा इसमें सर्च PSU करिएगा। वो तो दो मिल जाएगा, बस स्मॉल तो के देखो लिए यहाँ पे देखना भी है, पड़ेगा। एनएससी पे भी है, दोनों जगह से आपको मिल जाएगा, बराबर। ओके। हाँ, हाँ। ओके, नहीं सर, तो चलिए, प्राइवेट तो बहुत और ये मुश्किल पब्लिक चीज का तो नहीं है। मिल जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। बताओ बताओ क्या बता रहे थे आप अशोक भाई? प्राइवेट और पब्लिक तो मिल जाएगी, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उसका लिस्ट कहाँ से दूंगा? वही हाँ देखो, वो तो दोनों उसके लिए क्या करो, अभी आपका वापस मेरे को ये सेक्टर खोलने दो। बंधन बैंक की शुरुआत यूनिवर्सल बैंकिंग की तरह हुई थी, पर आप इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में गिनो, बराबर है। अभी इनका बड़ा होल्डिंग हाउसिंग फाइनेंस में भी है, क्योंकि इन्होंने क्रू खरीद लिया,
तो एक्चुअली हाँ, हाँ। स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, पर इसकी जो बिहेवियर है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक की है। आप इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में गिनो। एयू स्मॉल फाइनेंस Okay. बैंक, एयू बैंक जो है वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसके अलावा Equitas, एक और इसको पता है, और कौन सी है इसके अलावा? Equitas भी है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, करेक्ट मैडम, वेरी गुड, राइट। ये तीन को आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में गिनिएगा। उज्जीवन है। उज्जीवन लिमिटेड है, उज्जीवन, एक मिनट, उज्जीवन ये रहा, देखो यहाँ इसका नाम ही है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना। Okay, sir. उज्जीवन स्मॉल Okay. फाइनेंस बैंक को भी आप इसी में गिनिएगा, बराबर है अशोक Okay. भाई? जी, ओके, sir. राइट। सो Okay, लेट sir. मी Thank मूव फर्दर नाउ। मैं इंडस्ट्रीज पे आ गया और अगेन मैं वही सेम मेथड कर रहा हूं। ग्रोइंग इंडस्ट्री पे हम लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने अशोक भाई से बात की, वी डिस्कस्ड विथ राजेश सिंह, धवल शाह। धवल भाई, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? यस धवल भाई, इफ यू आर ऑनलाइन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, धवल भाई अभी नहीं है ऑनलाइन, है ना, क्योंकि धवल भाई तो 6:45 से बाकी अंदर थे। ओके, चलिए हम थोड़ी देर बाद धवल भाई से बात करेंगे। ओके, अभिषेक, आर यू ऑनलाइन? अभिषेक रस्तोगी, मेरे ख्याल से अभिषेक इज ऑल्सो नॉट ऑनलाइन राइट नाउ। अभिषेक जी नहीं है नहीं ना? है। ओके, अभिषेक ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और कंसल्टिंग सर्विस पे काम किया है। देखो जो आपके सामने है, जैसे धवल भाई से हमारी बात नहीं हुई, बट धवल भाई हैव गॉट दिस एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया 26% ग्रोथ। रियली दिस इज अ हाई ग्रोइंग ग्रोथ इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है ये इंडिया का इमर्जिंग और ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ध्यान रखना। हमें इनमें कंपनियां ढूंढनी पड़ेगी अच्छी अच्छी। इनके अलावा अशोक भाई बैंक ढूंढ रहे थे। सी अशोक भाई बैंक पे जो उन्होंने ढूंढा, बैंकिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो अ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, so we all should focus on this industry, right? ये वो इंडस्ट्री है जो 20 साल से जबरदस्त ग्रोथ कर रही है और आने वाले समय में भी और ग्रोथ करेगी। कोरोना में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, बट इट्स ऑल राइट। ये वो कंपनियां हैं जिनको धंधा मिल रहा है, राइट। वैसे ही धवल भाई ने एयरलाइन में काम किया है। एयरलाइन में कौन आता है? इंडिगो, है ना? SpiceJet Yeah. and Indigo. यस मैडम। Interglobe. एयरलाइन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो वैसे देखा जाए तो गरीब कंट्रियों में एयरलाइन इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करती है, पर इंडिया इमर्जिंग कंट्री है। आप एयरलाइन में, आप लोगों को पता ही होगा, पिछले 1.5 साल से बस स्टैंड जैसी हालत हो गई थी एयरलाइन की, है कि नहीं? But फिर भी कोई इतना एयरलाइंस क्यों फेल हो रहा है सर? यस मैडम, इतना आपने एयरलाइंस यस यस बताइए बताइए। इतना एयरलाइंस फेल हो रहा है। हाँ, जेट हो गया, किंगफिशर हो गया, व्हाई दे आर फेलिंग? यस, उसकी बात हम क्वालिटी में आएंगे तब करेंगे, है ना। क्वालिटी की जब चर्चा करेंगे तब स्पाइस जेट, किंगफिशर पे जरूर बात करेंगे। लेकिन एक चीज हमें पता रहनी चाहिए कि एयरलाइन इंडस्ट्री को धंधा जबरदस्त मिल रहा है, राइट। अब इनको जो प्रॉब्लम है, डेब्ट के प्रॉब्लम होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर कोई कंपनी ऐसी हो तो ये डेब्ट को मैनेज कर सके, तो हमें यहाँ से ऐसी कंपनी मिल सकती है जो हाई ग्रोथ करेगी। इंडिया में आप लोग घूमे होंगे तो आपको पता होगा कि आप कोई भी फ्लाइट में देखो एक सीट खाली नहीं जाती थी। इसका मतलब ये कि एयरलाइंस को धंधा ढूंढना नहीं है, उनको धंधा जबरदस्त मिल रहा है। प्रॉब्लम जो होंगे क्वालिटी में, पर इसका नाम जरूर ग्रोइंग इंडस्ट्री में रखना चाहिए। और आने वाले समय में भी एयरलाइन जबरदस्त ग्रोथ करेगी। ये साल कोरोना का साल है, इतने समय से एयरलाइन बंद है, तो एयरलाइन इफेक्टेड है। एयरलाइन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जबरदस्त इफेक्ट हुई है कोरोना से, राइट। So this is a corona affected industry, but we should not forget there is high growth. Yes sir, राजा जी,
You have written about competition, so definitely we will talk about competition while searching quality companies, right? पर एक चीज क्लियर है, धवल भाई होते तो ज्यादा अच्छा रहता, but still let me open his company है, इधर गया धवल भाई का एयरलाइन इंडस्ट्री, ओके, धवल शाह इंडस्ट्री, शायद यहाँ पे किया होगा, नहीं, ओके, मुझे इसमें मिल नहीं रही है, एसेट मैनेज, यस ये रहा है, राइट। एक चीज क्लियर है कि इंडिगो को 16,000 करोड़ का धंधा मिलता था, just during last 4 years they are able to double their turnover। आपको मुश्किल से ऐसे सेक्टर मिलेंगे जिनका धंधा डबल हुआ है, 20% ग्रोथ इज नॉट अ स्मॉल ग्रोथ, राइट। तो ग्रोइंग इंडस्ट्री जरूर है, और मैं ये भी बता दूं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री का नाम आता है, बराबर है। इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, राइट। कुछ देर बाद बात करते हैं धवल भाई से। लेट मी टेक अदर सेक्टर, जैसे अभिषेक ने काम किया है यहाँ पे, ये दोनों सेक्टर बढ़िया है, 21% ग्रोथ अगर है, अभिषेक भले आज ऑनलाइन नहीं है पर हम सबको पता रहे कि वो सेक्टर पे हम ढूंढेंगे। यस धवल भाई, 1 मिनट अभी मेरे को खाली दे दो, है ना धवल भाई, जस्ट 1 मिनट। ओके सर, ओके सर। या तो जहां पे भी आपको डबल डिजिट ग्रोथ मिले वो सेक्टर को देखना जरूर चाहिए, राइट। जस्ट ट्राई टू सर्च समथिंग, हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे यहाँ पे कुछ कंपनियां मिलेगी हमें, राइट। धवल भाई, हेलो, यस, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग धवल भाई। धवल भाई, आपके कई सेक्टर आपने काम किए हैं, एयरलाइन में आपने काम किया, आपने एडवर्टाइजिंग पे काम किया, और मेरे ख्याल से आपके पास कुछ सेक्टर थे, देखने दो मेरे को। अरे वाह, सारे सेक्टर पे काम कर लिया है, ताली बजानी चाहिए धवल भाई के लिए, वंडरफुल वर्क, क्या बात धवल भाई। थैंक यू सर। ओके सर मैंने कुछ धवल भाई, 15 या 20 क्या? अदर इंडस्ट्री, हेलो ओके सर, मैंने 15 to 20 अदर इंडस्ट्रीज के ऊपर भी ये वर्कआउट किया है। मैंने सारे ये अपनी गूगल स्प्रेडशीट में अपलोड किए हैं सारे। वेरी गुड, ओपन करने दो मुझे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इंडस्ट्री में अब तक काम नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पे बहुत सी फिगर मिसिंग है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप में से जो जिसकी भी स्पीड अच्छी है, इफ यू वांट टू वर्क, काइंडली फिल दिस गैप, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज हमारे काम की होगी, पर अगर यहाँ पे फिगर नहीं होगी तो हो सकता है आप कोई ग्रोइंग इंडस्ट्री मिस कर जाओगे, राइट, है ना। तो आज का सेशन खत्म होने के बाद आई विल रिक्वेस्ट यू कि काइंडली मिसिंग फिगर को फिल कर दो। ओके धवल भाई, हो गया ओपन? हाँ सर, हो गया। यस यस, आपको वो लॉगिन भी लेना पड़ेगा आपका GoToMeeting। सर मैंने वो अशोक सोनागरा सर की जो है उनकी सारी की सारी मैंने की है, वो उन्होंने कर दी, वो रिपीट हुई है। अच्छा ओके, अशोक भाई की सारी जैसे मैंने sheet आपने- ब्रूवरीज, हाँ ब्रूवरीज किया है मैंने, कंसल्टिंग सर्विसेज किया है, वेरी गुड, कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर कंटेनर पैकेजिंग, तो वहां पे